Hello students, now last time I have told you how will you create a form, how will we create a text box, how will you create a password field, check boxes, radio buttons, drop down list. Now today we are going to discuss few more buttons and frames. So first we will complete forms. Now see, the last time I have shown you this type of form on which we were working. It was like that. Okay, this is text box, this is check box, this is radio button. Okay, this is also a radio button. When we select the other radio button, the previous one will be deselected, and this is called drop down. Okay, in which I have told you if we have 50-60 options or more than that, then we can make the use of drop down. Okay, so by clicking on that we can select. Now today I am going to tell you how we can add a scroll bar here. You have seen some drop down boxes have a scroll bar. Okay, so we have to make a little change in it. We will open its coding. Okay, I have told you this drop down is created using select tag. Okay, this is called select tag. Okay, and the options I have written using option tag. So now today if you want a scroll bar, ठीक है, अगर आपको scroll bar इसमें ऐड करना है तो in select tag we use a attribute size. Okay, if you want to size, it's your choice. Try to give more than 2 or 3 क्योंकि तभी आपको scroll bar नज़र आएगा. If you will give 1 तो it will show you the scroll bar, but there is no use of it. Okay, so if suppose I am giving size 4, save it. Now see, it has added the scroll bar. If you will give size 4, suppose as I have given size value is 4, so you can see it is showing only the 4 states. Okay, तो आप जितना भी साइज रखोगे उतने वैल्यूज वो आपको एक बार में शो करेगा. लेट मी शो यू हाउ. इफ सपोज I have given size is equal to 2. Okay, so it will show you only 2 states. See, okay, so size help us to add a scroll bar, and it only show that much value which you have defined in the value. Suppose if I have defined 2, so it will show you only 2 values, and it will add the scroll bar also. Okay, so and by clicking on this scroll bar you can select any city, any state, whatever value is there, but it helps us only to select only one. आप सिर्फ एक ही select कर सकते हो. Suppose I am holding control key, still it is helping us to select only one, but sometimes it happens I want to select more than one. अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ करनी है सेलेक्ट, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू ऐड वन एट्रीब्यूट इन सेलेक्ट टैग. क्लिक हियर, लेट मी मेक इट साइड बिगर. साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं सो डैट आपको क्लियर हो जाएगा मल्टीपल हम कैसे वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं. यू हैव सीन इट वॉज हेल्पिंग अस ओनली टू सेलेक्ट ओनली वन. तो if I want select multiple, so in select tag you can use one more attribute, that is multiple. Okay, when you will use multiple, now you will see. Okay, अभी अगर आप ऐसे एक सेलेक्ट करोगे तो इट विल हेल्प यू ओनली टू सेलेक्ट ओनली वन. तो अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट करनी है, जस्ट सेलेक्ट अ वन and hold down the shift key or control key. Shift key अगर आप select करोगे तो it will help you select in continuation, and if you want to select alternate or not in continuation, hold down control key. So after selecting one, I am holding the control key and then select the multiple. C. Okay, अगर आप बिना control key hold किए इस value को select करोगे, it will not help you. ये देखिए एक ही करेगा. So hold down the control key and then select. Then only it will help you to select multiple values. But उसके लिए हमें multiple भी लिखना पड़ेगा. It's not like that कि आप multiple नहीं लिख रहे हैं without writing that you are trying to select. Okay, so first I have written
multiple, okay, and then you can select multiple values using control key. Now one more I am going to show you how we can add a text area. मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स लास्ट टाइम बताया था. टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, you can enter only one line or a short value. Okay, for that we have used input type is equal to text, which allow you only to enter one line only. Okay, if you want to use multiple lines, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टैग यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें लेट मी शो यू टेक्स्ट एरिया होता कैसा है. दिस इज़ अ टेक्स्ट एरिया वेयर यू कैन सी, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एंटर लिखा हुआ है. ओके, ये देखिए, इसमें आप मल्टीपल लाइंस को लिख सकते हो, मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन ऐड मल्टीपल लाइंस. ओके, तो ये इसके लिए हम कौन सा बॉक्स यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया. तो इसके लिए आपको जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है वो आप करोगे. ठीक है, इसके लिए अब हम यहाँ पे BR टैग लिख देते हैं, सो डैट इट कैन डिस्प्ले ऑन नेक्स्ट लाइन. अब हमें यूज़र से लेबल लेना पड़ेगा, लेबल शो करना पड़ेगा कि वो क्या इसमें फिल करेगा. सपोज हमें यूज़र से फीडबैक लेनी है, तो राइट डाउन फीडबैक एंड BR टैग टेक्स्ट एरिया. ठीक है, टेक्स्ट एरिया. अब इसमें आपको साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा. इफ़ यू रिमेंबर हमने टेक्स्ट बॉक्स में यूज़ किया था साइज़ एंड मैक्सिमम लेंथ. इसमें टेक्स्ट एरिया के साइज़ को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉल्स. कॉल्स हेल्प अस टू डिफाइन इट्स विड्थ, कि आप कितनी विड्थ चाहते हो. अगर मैंने 10 लिया तो उसके अकॉर्डिंग वो विड्थ को शो करेगा. ठीक है, और अगर आपको उसकी हाइट शो करनी है तो यू विल यूज़ रोज. ठीक है, और नेम एट्रीब्यूट आपको पता ही है क्यों यूज़ होता है. इट ओनली हेल्प अस टू डिफाइन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बटन और इनपुट एलिमेंट. तो इसका नाम हम फीडबैक रख देते हैं. हेयर वी राइट समथिंग. अगर आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हो, सपोज मैंने इनिशियल वैल्यू जैसे आपको बताई थी, तो इसमें हम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते हैं. whatever you will write it will display inside the text box. तो it's your choice. अगर आप उसके अंदर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट तो कर सकते हो. उसके लिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एंटर योर फीडबैक हियर, ये आपकी चॉइस है. आप यहाँ पे जो भी लिखोगे इट विल डिस्प्ले इनसाइड योर टेक्स्ट एरिया. एंटर योर फीडबैक हियर. ठीक है, और फिर टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना मैंडेटरी है. अभी तक हमने जितने भी इनपुट एलिमेंट्स पढ़े हैं, आपने देखा मैंने किसी को भी उसमें क्लोज नहीं किया है, बट इसमें हम क्लोज करेंगे. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे. उसके लिए सेव, ये देखिए. ओके, इसमें मैंने एक्चुअली में रो ज़्यादा दे दी और कॉल कम कर दिया. देखिए कॉलम कम करने से क्या हो गया, इसकी विड्थ कम आ गई. अब देखिए इसमें मैंने एंटर योर फीडबैक हियर लिखा था ना, तो अगर आप टेक्स्ट एरिया से बंद करने से, क्लोज करने से पहले इफ़ यू विल राइट समथिंग इट विल डिस्प्ले इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स. तो इट्स योर चॉइस, इट्स अप ओनली अप टू यू कि आप उसमें क्या करना चाहते हो. ओके, so I will show you everything, don't worry. What I will do here, I will first increase the columns, क्योंकि रोज़ ज़्यादा हैं तो मैं ऐसा करती हूँ उसकी 50 कॉलम्स कर देती हूँ. and if suppose I don't want to display anything here by default, so what I can do, I just close the text area without saving. ठीक है, चला गया. और टेक्स्ट एरिया को मैंडेटरी है क्लोज करना. अगर आप टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं करोगे, आफ्टर टेक्स्ट एरिया इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग इट विल डिस्प्ले इनसाइड द टेक्स्ट एरिया. रिमेंबर, ऐसा होता है.
अगर आप टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं करते हो एंड इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग आफ्टर टेक्स्ट एरिया, वॉट एवर बटन यू आर गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग, it will come inside the text area. So what you should do, first you close it and then try it. Now we are trying to put a buttons. अब क्या होता है, when after जब आपने फॉर्म फिल कर लिया, तो फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करते हो तो उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो. वी हैव टू बटन, सबमिट विच हेल्प अस टू सबमिट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म. एक होता है रीसेट. रीसेट बटन का यूज़ क्या है, सपोज आफ्टर फिलिंग द फॉर्म इफ़ यू सी कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो गई है या आपको फिर से फॉर्म भरना है तो आप रीसेट पे क्लिक करते हैं. तो रीसेट पे क्लिक करने से क्या होता है, यू कैन फिल द फॉर्म अगेन बिफोर सबमिटिंग. तो उसके लिए भी कुछ टैग्स हैं. वी आर गोइंग टू लर्न टू मोर बटन्स. वो हैं इनपुट. अगेन वी हैव अ इनपुट बटन. टाइप एट्रीब्यूट. ओके, आई हैव टोल्ड इट हेल्प अस टू डिफाइन द टाइप ऑफ एलिमेंट. अब अगर आपको सबमिट बटन करना है तो यू विल राइट सबमिट. ये मैंडेटरी है, ठीक है. इफ़ यू वांट टू सबमिट अ फॉर्म, इफ़ यू अगर आपको पुश बटन यूज़ करना है तो बटन्स जिसको पुश करके यूज़र सबमिट करेगा फॉर्म, तो उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट इज़ अ टैग, टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट. और वैल्यू का मतलब आपको पता है, इट विल हेल्प अस टू डिस्प्ले ऑन दैट. आपको बटन पे जो भी लिखना है, बिकॉज व्हेन यू विल राइट एनीथिंग ऑन द बटन देन ओनली यूज़र कैन रीड इट एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली. तो उस पर हम सेंड लिख सकते हैं या सबमिट लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस. ओके, सो लेट मी शो यू. ये देखिए बटन आ गया, ठीक है, ये सेंड हो जाएगा. आई हैव नॉट फिल्ड, बट अगर आप ब्लैंक फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो वो भी चला जाएगा, सबमिट हो रहा है. ओके, बिकॉज इंटरनेट इज़ नॉट ऑन, अदरवाइज उसमें जो भी बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस दिया है वो उस पर चला जाएगा. सो वन मोर बटन विच हेल्प अस टू रीसेट. ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेती हूँ. यू हैव सीन इट इज़ कमिंग जस्ट नियर द टेक्स्ट बॉक्स एरिया विच वॉज डजंट लुक नाइस. सो अब आपको रीसेट बटन के लिए भी सेम देना है इनपुट टाइप, बस टाइप डिफरेंट हो जाएगा, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीसेट. रीसेट बटन हेल्प अस टू रीसेट द मीन्स फिल द वैल्यूज़ अगेन. यहाँ पे वैल्यू आपको जो भी लिखनी है, वॉट एवर, इट्स योर चॉइस. रीसेट. फॉर्म आपका कंप्लीट, फॉर्म क्लोज, HTML कंप्लीट, HTML क्लोज. ठीक है, अब मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाती हूँ. ठीक है, क्लियर. ये मेरा सपोज कुछ भी पासवर्ड है. माई हॉबी इज़ रीडिंग एंड लर्निंग. ठीक है, जेंडर फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है फिल इट हियर. स्ट्रीम सपोज माई इज़ कॉमर्स, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर आपके चेंज करनी कर सकते हैं. एंड योर UP. इफ़ आई वॉन्ट टू गिव एनी फीडबैक इट्स योर चॉइस. ओके, कुछ भी वॉट एवर एंड क्लिक ऑन सेंड. ये देखिए, ठीक है, तो ये आपको सेंड करने में हेल्प करेगा, मीन्स यू कैन सबमिट इट. और अगर आपको रीसेट करना है, सपोज अब जैसे सारी वैल्यूज़ चली गई हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी भर के दिखा देती हूँ कि रीसेट का क्या काम है. सपोज आई हैव फिल्ड ऑल द वैल्यूज़. अब मैंने रीसेट किया. व्हेन आई विल क्लिक ऑन रीसेट बटन यू विल सी द फॉर्म विल अगेन ब्लैंक and now I can start filling again. So in this way it is mandatory to give type is equal to submit and type is equal to value. See, okay. अब अगर इनपुट टाइप में सबमिट अगर आप नहीं लिखोगे तो it will not create a submit button, it will not help you to submit the form, and if you will not type reset so it will not help you to fill the form again. Okay, सो एंड वैल्यू इट्स योर चॉइस. जिसको पढ़ के यूज़र कुछ भी फिल करना चाहे वो वैल्यू, जो भी मैंने सेंड रीसेट लिखा था आपने देखा, इट इज़ कमिंग ऑन द फॉर्म. ये देखिए सेंड और रीसेट मैंने लिखा था वैल्यूज़ में, तो इट इज़ अपीयरिंग ऑन द बटन. बटन पे आपको जो भी डिस्प्ले करना है वो आप वैल्यू में लिखोगे. सो इन दिस वे वी कैन
You have learned today what is form, on how we can create multiple buttons to create a form. One more thing I was telling you कि अगर if you are not closing text area, suppose अगर मैंने यहाँ पे text area को close नहीं किया, what will happen? Why it is mandatory to close to text area? See, ये देखिए आ गया ना सब text area के अंदर. So after text area, if you want to display anything, it's mandatory to close text area, otherwise everything will display inside the text box. Okay, तो इसलिए that's why it's mandatory to close text area. If you want to write anything under by default inside the text area, write, otherwise close text area. Now see. Okay, so in this way today you have learned how we can create a forms. Now next thing is that one more thing you are going to learn, and it's very easy. How can you create a frames forms? So I hope it is clear to you to help us to collect the fields values from the user. Okay, frames क्या होते हैं? Frames are actually help us to display multiple web pages. अगर आप एक साथ कई सारे web pages को शो करना चाहते हो एक साथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यू हैव सीन इट शोज ओनली वन, बट इन सम वेबसाइट्स यू हैव सीन इट शो यू मल्टीपल वेब पेजेस एट द सेम टाइम. तो वो हम कैसे करेंगे? फ्रेम्स की हेल्प से. यू कैन सी आई हैव इट इज शोइंग यू 3 वेब पेजेस. वन इट इज ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, ये देखिए आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो बाय स्क्रॉलिंग. सो इट इज़ अ प्रूफ कि we can display multiple web pages and not only horizontally, vertically also. Okay, so ये कैसे करेंगे? For this you need multiple web pages. So I already have A, B, C and frame. मेरे पास आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने पहले से वेब पेजेस बना रखे हैं. ये देखिए, ये ब्लू कलर का, दिस इज़ ऑफ रेड कलर, this is of green color and this is our form. एक इसको भी हम ले सकते हैं. ओके, तो ऑलरेडी आई हैव 4 वेब पेजेस. तो अगर आपके पहले से ही आपके पास वेब पेजेस हैं या उसी सेम वेब पेज को आप मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले कर सकते हो. तो अब आप क्या करोगे? यू विल ओपन टेक्स्ट एडिटर. आपको एक छोटा सा कोड करना है. ठीक है, राइट नोटपैड हियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे आप वही सारे टैग्स लिखोगे जो आप 4 बेसिक टैग्स हमेशा यूज़ करते हो. HTML हेड, टाइटल हम फ्रेम्स ले लेते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न फ्रेम्स. क्लोज टाइटल, यहाँ पे हमें बॉडी टैग की कोई ज़रूरत नहीं. जब हम फ्रेम्स बनाते हैं तो रिमेंबर वी डू नॉट यूज़ बॉडी टैग्स, क्योंकि यहाँ पे हम कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्प्ले मल्टीपल वेब पेजेस एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे हम बॉडी की जगह कौन सा टैग यूज़ करेंगे? फ्रेम सेट. ठीक है, अब फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट डिफाइन करना ज़रूरी है. अब आप फ्रेम्स, अभी आपने देखा मैंने आपको जो फ्रेम दिखाया डैट वाज हॉरिजॉन्टल, उसमें मैंने रोज़ में फ्रेम्स को डिफाइन कर रखा था, वेब पेजेस को. तो आपके इसके 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स एंड रोज. अगर मुझे वर्टिकली शो करना है तो इसका एट्रीब्यूट है कॉल्स. ठीक है, एक बात याद रखना, अब आप इस फ्रेम को जब डिवाइड करोगे तो ये सोच के डिसाइड करना पेज का साइज 100 होता है. ठीक है, तो 100 में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. सपोज़ मुझे एक बार में 2 पेजेस दिखाने, तो वो मेरी चॉइस है कि मैं 50-50 करूँ, 40-60 का रेशियो रखूँ, 20-80 का रेशियो रखूँ, 30-70 का रेशियो रखूँ. इट्स योर चॉइस. ठीक है, तो अगर मुझे 2 फ्रेम्स दिखाने तो मैंने रेशियो रखा 30%, कॉमा. तो आपका जो पहला वेब पेज है वो 30% शो होगा और दूसरा वाला 70%. क्योंकि हम फ्रेम्स यहाँ पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम अब मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ शो करेंगे. तो जब हम एक साथ कई सारे वेब पेजेस को शो करते हैं तो हमें से बताना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू शो द वेब पेज इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. वर्टिकली शो करना है तो कॉल्स यूज़ करोगे, रोज में यूज़ करना है तो रोज. ओके, नाउ
अब आपने दो फ्रेम्स लेने हैं, यानी कि यू विल डिफाइन द एट्रीब्यूट एड्रेस ऑफ 2 वेब पेजेस। तो उसके लिए आप फ्रेम टैग यूज़ करोगे और सोर्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन द एड्रेस ऑफ अ पेज। सपोज अब ये ए है, तो इसका आप यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लो। इफ़ योर फाइल्स आर इन द सेम लोकेशन तो आप सिर्फ फाइल का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, a.html भी लिख सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं। अब आपको दूसरे फ्रेम का जो दूसरा आपका वेब पेज है उसका भी डिफाइन करना है। फ्रेम सोर्स हेल्प अस टू डिफाइन द एड्रेस। ठीक है, इसको मैं सेम कॉपी कर लेती हूँ बस, क्योंकि मेरी जो भी फाइल है वो सेम लोकेशन में है, तो एड्रेस विल बी सेम, बस हमें फाइल का नेम चेंज करना है। अब आप फ्रेम सेट को क्लोज कर दो। फ्रेम सेट विल बी क्लोज। बॉडी टैग तो इसमें यूज़ होता नहीं है, तो हम यहाँ पे HTML क्लोज करेंगे। ठीक है, सेव इट। मैं इसका नाम रख देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फ्रेम बना रखा है, तो frame1.html रख दिया मैंने इसका नाम, और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया सो डैट इजीली वी कैन सी। नो सी इट इज़ शोइंग 2 फ्रेम्स। तो 2 वेब पेजेस आप इनको अपनी उसके अकॉर्डिंग भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको 3 फ्रेम्स में डिवाइड करना है तो आपको 3 फाइल्स का नाम देना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 30% कर दो, और जो आपका नेक्स्ट फ्रेम होगा तो 40% है ना, मतलब 100 में डिवाइड करना है। अब आप देख लो कैसे डिवाइड करना है, 40%। ठीक है, और यहाँ आपको एक और फ्रेम का एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, मैंने एक C नाम की भी फाइल बना रखी है, सेव इट। देखिए, ठीक है, एंड यू कैन H को ड्रैग भी कर सकते हो। देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे रोज़ कर दें तो ये रोज़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि मैम हम कॉल्स और रोज़ दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसे भी कर सकते हैं, बट फिर इसके लिए थोड़ा सा आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए नेस्टिंग करनी पड़ती है जो आपको और कंफ्यूजिंग होता है। सो जितना आपके सिलेबस में, बल्कि फ्रेम्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन योर बुक इट इज़ गिवन, दैट्स वाई मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, सो इन दिस वे आप रोज़ कॉलम्स भी डिवाइड कर सकते हो, 4 फाइल्स भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो एक फ़ाइल और आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे इसका रेशियो चेंज करना पड़ेगा। इसका मैं 10 कर देती हूँ, इसका 20 कर देती हूँ, 10, 20, 30, 40, 70, तो हम आगे वाले का 30% कर देते हैं। ठीक है, और एक और फाइल का नाम दे देते हैं। इस फाइल का नाम क्या है, form1। ओके, यहाँ पे इस फाइल का नाम कर देते हैं form1। तो 4, 5, 6, 7 कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी कर सकते हो। देखिए, आगे 4 फॉर्म्स। क्लियर? तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी मल्टीपल वेब पेजेस एट द सेम टाइम। आपने वेबसाइट्स में भी देखा होगा, वो यहाँ पे कॉलम आ जाता है, यहाँ पे आपका एक सिंगल वेब पेज आ रहा होता है। तो इन दिस वे दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स ओनली। तो फ्रेम्स हेल्प अस टू डिस्प्ले multiple web pages either horizontally, vertically, or both at the same time. Thank you. So this chapter is complete.